تھوڑا سا آواز میں وہ ہوگا، میں اس میں گاڑی میں ہوں اس وجہ سے ذرا جناب اجرا کے لیے کوئی ساتھی جو ہیں وہ آ جائیں. کون کرے گا اجرا؟ کوئی اس میں سے مردوں میں سے کوئی، لڑکوں میں سے کوئی آ جائے اجرا کے لیے. جو ہے اجرا جو ہے، جو ہم نے پڑھا ہے ابھی تک، جو چیزیں پڑھی ہیں اس کو ذرا ہم تھوڑا سا وہ کرتے ہیں. چلیں جی، احمد صاحب مائک ان میوٹ کر لیں. جی جناب. جی الحمد اسم فعل حرف ہے. الحمد اسم ہے. اسم کیوں ہے؟ پہلی علامت اس میں شروع میں الف لام آ رہا ہے. اچھا، اور ایک اس میں مسند الیہ ہونا بھی ہے، یعنی ایک دوسری علامت اس میں مسند الیہ ہونا بھی ہے، وہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی وقت کے ساتھ جو ہے. اچھا اب یہ بتائیے، یہ اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے؟ یہ اس میں متمکن ہے. اس میں متمکن کیوں ہے؟ اس میں متمکن کیوں ہے یہ؟ اس میں متمکن کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے نہیں ہے. اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام کون کون سی ہوتی ہیں وہ سنا دیں مجھے ذرا. 8 اقسام میں ایک مضمرات ہے، اسماء موصولہ ہے، اسماء اشارہ ہے، اسماء افعال ہے، اسماء اصوات ہے، اسماء ظروف ہے، اسماء کنایات اور منقلب بنائی. 8 قسمیں اس میں غیر متمکن ہیں. اچھا، ان میں سے یہ کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جب یہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہے تو اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کوئی چیز ہوگی. اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے یہ کیا ہے؟ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کل ہم نے کچھ پڑھا تھا الحمد. ہاں، مفرد منصرف صحیح ہے، کیونکہ مفرد ہے، منصرف بھی ہے، غیر منصرف نہیں ہے، اور کیا ہے صحیح بھی ہے کیونکہ آخر میں دال آ رہا ہے، حرف علت نہیں ہے، تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے. اس کا اعراب کیسے آتا ہے؟ اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ آتا ہے، حالت نصب میں فتحہ آتا ہے اور حالت جر میں کسر. اچھا، الحمد کے اندر آپ کے خیال کے اندر یہ کون سی حالت ہوگی؟ الحمد کون سی حالت ہوگی آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے ضمہ ہوگی. تو یہ حالت رفع ہے، حالت رفع ہے. جب یہ حالت رفع ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ منصوبات کی 12 قسموں میں سے کیا بن رہا ہوگا؟ حالت رفع ہے تو منصوبات کی 12 قسموں میں سے یہ کیا بن رہا ہوگا؟ یہ منصوبات کی 12 قسموں میں سے مفعول لہو بن رہا ہوں. الحمد نہیں الحمد یہ کیا بن رہا ہوگا؟ مرفوعات میں سے ہوگا یا منصوبات میں سے ہوگا؟ پہلے تو یہ مجھے بتائیں، منصوبات میں سے ہوگا یا مرفوعات میں سے؟ یہ منصوبات میں سے ہوگا یا مرفوعات میں سے ہوگا؟ حالت رفع ہے نا، تو پھر کس حال میں سے ہوگا؟ پھر اگر حالت رفع ہے تو یہ مرفوعات میں سے ہوگا یا پھر منصوبات میں سے ہوگا؟ مرفوعات میں سے ہوگا پھر تو. ہاں، تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مفعول لہو ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، تو حالت رفع ہے تو اس کا مطلب مرفوعات میں سے ہوگا. جب مرفوعات میں سے ہے تو مرفوعات کی 8 قسمیں ہوتی ہیں، ان کے نام بتائیے کون کون سے نام ہوتے ہیں؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، انا کا اسم اور لائن نفی جنس کا اسم اور کانا کا اسم. لائن نفی انا کا خبر، لائن نفی جنس کی خبر اور کانا کا اسم اور ماولا کا اسم. تو یہاں پہ یہ مرفوع، یہ مبتدا واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کیا آ گیا؟ مبتدا آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی، یہ مبتدا میں سے آ گیا. جی جناب. اچھا جی، نیکسٹ اب چلتے ہیں ہم آگے. جناب عثمان چلو جی، مائک وہ کر لو. احمد آپ اپنا مائک آف کر لیں. اچھا جی عثمان صاحب.
चलिए जी, लिल्लाही, लिल्लाही, ये लाम, लाम इसमें से क्या है? इस समय फेल है, हर्फ है? हर्फ है, हर्फ क्यों है? क्योंकि ये ना इसम की है और ना उसकी फेल की अलामतों में से नहीं है। हाँ, ना इसम की कोई 11 अलामतों में से कोई अलामत है, ना फेल की 9 अलामतों में से कोई अलामत पाई जा रही है, इसलिए ये हर्फ है। ठीक है ना? अच्छा, हर्फ जो होता है ना, जब हर्फ आएगा ना तो वो फिर 2 किस्मों के ऊपर होता है, ये भी सारे नोट कर लें अपने पास। हर्फ जब आता है वो 2 किस्मों पे होता है, एक होता है आमिल होता है और एक होता है गैर आमिल होता है। आमिल का मतलब होता है अमल करने वाला, और गैर आमिल का मतलब ये है कि वो अमल नहीं करेगा। तो ये आपके ख्याल में ये लिल्लाही, ये हरूफ आमिला में से होगा या हरूफ गैर आमिला में से होगा, कि अमल करता है या नहीं करता, ये अमल जो है उसमें से? आमला में से ऐसा है, ये हरूफ आमिला में से है। ठीक है, तो क्योंकि हरूफ हर्फ जार आमिला में से, हाँ, ये हरूफ जारा में से। हरूफ जारा कितने होते हैं? 17, कौन कौन से होते हैं? बाउ ताउ काफो लामो वाओ मुज़म्मुल खला मिन रुबा आशा मिन अदा अन इला। शाबाश है। फी अन अला हत्ता और इला, ये तो याद होने चाहिए बिल्कुल जो है उसमें जी से। जी। ठीक है, अच्छा, तो ये उसमें से आ गया। अब मुझे ये बताओ कि ये हरूफ में से है, ठीक है ना, ये हरूफ में से है। जी तो अच्छा, अब आते हैं जी लफ्ज अल्लाह। इस समय फेल है, हर्फ है? इसम है, इसम क्यों है? अलिफ लाम और कोई अलामत? मंसूब है, और कोई नहीं मुस्नद अलामत? लिल्लाही, बहुत बड़ी अलामत पाई जा। क्या? हरूफे मुस्नद इले नहीं बन रहा, मुस्नद हरफ जर दाखिल है इसके ऊपर। इस पे क्या दाखिल है? हरफे जार हरफ जरदा। जार नहीं नहीं, हरफ जर दाखिल है। तो हरफ जर जब, जी हरफ जर दाखिल है इसके ऊपर, ठीक हो गया। जी। जब हरफ जर दाखिल है तो ये उसमें से आ गया। अब ये मुझे बताओ, लफ्ज अल्लाह इसमें मुतमक्किन है, इसमें गैर मुतमक्किन है? इसमें इसमें मुतमक्किन, जी इसमें गैर मुतमक्किन है। इसमें मुतमक्किन है साहिब, हम्म, इसमें मुतमक्किन है क्यों इसमें गैर मुतमक्किन क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी 8 इकसाम में से नहीं, क्यों गैर मुतमक्किन की 8 इकसाम में से नहीं है। उसमें से नहीं है? अच्छा, तो इसमें मुतमक्किन की आपके ख्याल में कौन सी किस्म होगी ये? मुफरद मुनसरिफ सही, पहली किस्म। अच्छा, मुफरद मुंसरिफ सही, ठीक है। इसका इराब कैसे आता है मुफरद मुंसरिफ सही का? हालत रफ़ा में ज़म्मा है, हालत उसमें फ़तह में, ओ सॉरी, हालत नस्बी में फ़तह है और हालत हालत जर में नसब में कस्र। फतह, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताओ लिल्लाही, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया ना लिल्लाही। अब ये मुझे बताओ कि ये मरफुआत की 8 किस्मों में से क्या बन रहा है? मरफुआत की 8 किस्मों में से क्या बन रहा है ये? लिल्लाही, ये उसमें से है ही नहीं, उसके मरफूआत की किस्मत, क्यों? क्योंकि हरफ जर दाखिल हो रहा है सही, इसलिए। हरफ जर दाखिल है तो कौन सी किस्म होगी ये फिर? ये किस मजरूरात हालत में में से होगा? है, हालत जरी के अंदर होगा। जरी में होगी। मजरूरात कैसे? मजरूरात 2 होते हैं, उन 2 में से ये क्या वाकया हो रहा है? हरफ जर दाखिल हो रहा है। हरफ जर दाखिल हो गया, ठीक है ना। तो एक मुजाफुन इलैह होता है, जी उसमें से, और एक जिसपे हरफ जर दाखिल होता है, ठीक हो हाँ गया। जी तो ये हालत जरी के अंदर आ गया। जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, जरा आगे चलते हैं जनाब। जनाब उसामा अरशद साहब, उसामा अरशद साहब, उसामा अरशद। जी उस्ताद जी। जी, अच्छा जी। रब्बिल, रब्बिल आलमीन है ना, रब्बी, रब्बी इस समय फेल है, हर्फ है? सब में उस्ताद जी। इस समय रब्बी, जी। अच्छा, इसम है। और इसम क्यों है? इसम क्यों उस्ताद है? जी मुजाफ मुजाफ और इसलिए सब
हाँ मुजाफ हो रहा है इसलिए ये क्या है, इसम है। ठीक हो गया। इस समय हाँ अब इसम की 11 अलामतें मुझे सुना दें जल्दी से जरा। इसम की 11 अलामतें उस्ताद जी। हरफ जर दाखिल हो, तनवीन उसके आखिर में हो, हरफ जर उसके शुरू में हो, ताई साकरा उससे मिली हो, और मुजाफ हो, मुस्नद इलैह हो, और मौसूफ हो, तस्निया हो, जमा हो। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या आ गया ये, क्योंकि मुजाफ वाक़या हो रहा है। मुजाफ अच्छा ये मुजाफ हो रहा इसमें मुतमक्किन है, इसमें गैर मुतमक्किन है। है। इसमें मुतमक्किन है उस्ताद जी। इसमें मुतमक्किन है, इसमें जी जी। मुतमक्किन है, तो क्यों इसमें मुतमक्किन क्यों है? अस्माए गैर मुतमक्किन कि 8 किस्मों में से नहीं है, इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों में से नहीं है। जी सर जी। अच्छा इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में से आपके ख्याल में ये कौन सी किस्म होगी? इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में से उस्ताद जी इसम मुफरद मुनसरिफ सही है उसमें। इसम मुफरद मुनसरिफ सही है उस्ताद जी। मुफरद मुनसरिफ सही है। अच्छा जी सर जी। अब ये बताओ कि मुफरद मुनसरिफ सही है, इसका इराब हालत रफा में ज़म्मा, हालत नस्ब में फतहा, हालत जर में कसरा, यहाँ पे आपके ख्याल में ये किस हालत में है? जी और रब्बी जी जी सर जी। हेलो कौन सी हालत में है? सर जी, हालत जर में है सर जी। अच्छा जी, हालत जरी के अंदर है, ठीक है। अच्छा हालत जरी में है तो ये मजरूरात की 2 किस्मों में से क्या वाक़या हो रहा है? रब्बी और रब्बी मजरूरात की 2 किस्मों में से वो जो हाल है, कौन सा है ये कौन सी किस्म होगी मजरूरात की 2 किस्मों में से? जी उस्ताद जी, मुजाफ वाली किस्म जो जर की, वो जो मजरूरात वाली किस्म है उस्ताद जी, वो मुजाफ वाली जो क्यों? किस्म है उस्ताद जी। किस्म नहीं, मुझे नाम बताओ। मजरूरात 2 किस्मों पे होती है, कौन कौन से उसके नाम क्या होते हैं? मजरूरात उस्ताद जी, एक है जिस पर हरफ जर दाखिल हो, तो दूसरा उस्ताद जी जो मुजाफ हो। अच्छा नहीं, मुजाफुन इले हो, मुजाफ मुजाफुन इले हो, और जिस पर हरफ जी जी जर दाखिल हो, तो ये हरफ जर इन दाखिल दोनों हो। में से तो कोई भी नहीं है ना। इस पे रब्बी के ऊपर ना हरफ जर दाखिल है और ना ही ये मुजाफुन इले है। रब्बी के ऊपर हरफ जर दाखिल है कोई? नहीं है अल्हम्दुलिल्लाहि सर, रब्बी नहीं दाखिल। नहीं है। अच्छा फिर और फिर ये मुजाफुन इले वाक़या हो रहा है? नहीं, अभी तो आपने खुद कहा है कि जी ये मुजाफा है, मुजाफुन इले तो नहीं है ये रब्बी। तो फिर ये जर क्यों आई हुई है? यहाँ पे जर क्यों आई हुई है? हाँ उस्ताद जी, ये फिर लिल्लाही की सिफ्त बन रही है उस्ताद जी। हाँ शाबाश, गुड। लिल्लाही की सिफ्त बने। हाँ क्योंकि ये लफ्ज अल्लाह की सिफत वाक़या हो रहा है, और जैसे लफ्ज जी अल्लाह जो था वो मजरूर था, और मौसूफ सिफत मजरूर का था। इराब एक जैसा आता है। इस वजह से रब्बी के ऊपर हमने क्या पढ़ा है, ये तवाबे की किस्में जर हमने पर पढ़ी हुई हैं। तवाबे 5 किस्मों पे होता है, तो उसमें से एक क्या होती है, सिफत जी भी जी क्या होती है, ताबे सिफत होती होती है। है। ठीक है, तो ये सिफत होने की जी जी वजह से इसके ऊपर क्या आई है, जर आई है। ठीक हो गया? जर आई है उस्ताद जी। जी सर जी। ठीक हो गया। अच्छा जनाब आली, ये तो बात हो गई। अच्छा जी आगे चलते हैं जनाब, आगे आगे आ गया जनाब अब्दुल्ला हसन साहब का हो गया था, नहीं हुआ अभी अब्दुल्ला हसन। चलें जी, जी सर जी। चलें जी। अल आलमीन, अल आलमीन इसम है, फेल है, हर्फ है? इस समय सर जी, क्यों इसम क्यों है? सही जमा है और अलिफ लाम दाखिल है। ठीक हो गया। अच्छा इसमें मुतमक्किन है, इसमें गैर मुतमक्किन है? इसमें मुतमक्किन है सर जी। इसमें मुतमक्किन है।
جب یہ اس میں متمکن ہے تو اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے آپ کے خیال میں یہ کیا ہونا چاہیے؟ سر جی یہ جمع مذکر سالم. ہاں شاباش، یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم پڑھیں گے اس میں سے، لیکن یہ کیا ہے، یہ جمع مذکر سالم کا آگے وہ آئے گا. اس کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں مفرد منصرف صحیح، کیونکہ زبانوں پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو ہر جگہ کے اوپر کیا کر لیتے ہیں، اس کو مفرد منصرف صحیح بنا لیتے ہیں. تو مفرد منصرف صحیح نہیں بنے گا کیونکہ یہ جمع ہے، تو وہ تو مفرد اس لیے پڑھا تھا کہ مفرد کا کیا مطلب ہے، جو تثنیہ اور جمع نہ ہو. تو العالمین کیا ہے، یہ جمع آ رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا یہ کیا آ گیا، یہ جمع کی اس میں سے آ گیا. اور ٹھیک ہے، تو 16 قسموں کے اندر سے یہ وہ آ گیا. ٹھیک ہے، اچھا. اور اب یہ بتاؤ کہ العالمین جو ہے، العالمین اس کا وزن کیا نکل سکتا ہے بنیادی طور پہ؟ عالمین کا وزن کیا نکلے گا اگر وزن ہم بنائیں اس کا؟ تو وزن اگر ہم بنانا چاہیں فاعلین ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، فاعلین ہو جائے گا کہ جی یہ جو ہے نا تو اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تو فاعلین کی اس میں سے جو ہے نا یہ وہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا، یہ 16 قسموں میں سے وہ بن گیا. اور جناب اچھا جی، یہ بھی ہو گیا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اچھا جی، ہاں چلیں جناب. اور کون آئے گا؟ میمن صاحب، میمن صاحب کو میں وہ کرتا ہوں جناب. میمن صاحب چلیے جی. السلام علیکم جی سر. ہاں، ایاکا، ایاکا اس سمے فعل حرف ہے. ایاکا اس سمے فعل حرف ہے. یہ حضرت ضمیر ہے، یہ اسم تو نہیں ہے، ضمیر ہے، منصوب اور منفصل ہے. ہاں یہ اسم ہے، اس میں غیر متمکن میں سے ضمائر میں سے ایاکا، یہ ضمائر میں سے اسم کے اندر سے. جب اس میں غیر متمکن آ جائے گا نا تو اس میں پھر وہ 11 علامتوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس میں غیر متمکن میں سے کوئی چیز آ جائے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پھر اس میں سے وہ 11 علامتوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 11 علامتوں میں سے کیا واقعہ ہو رہا ہے. اس میں ہم کیونکہ وہ تھوڑے سے الفاظ ہوتے ہیں، اس میں ہمیں علامت کے بغیر بھی ہم پہچان سکتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے کہ جناب یہ کیا ہے، اسم ہے اور اس میں غیر متمکن میں سے ہے، اور کس میں سے ہے، اس کی ضمائر میں سے ہے. تو جب یہ ضمائر میں سے ہے تو یہ کیا آ جائے گا، اس کی یہ ضمیر وہ بن گئی ہے. ٹھیک ہو گیا، جی یہ ضمائر میں سے بن گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں غیر متمکن تو اس لیے سیدھا کام آسان ہو جاتا ہے. پھر جب اس میں غیر متمکن وہ بن جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہمیں. ٹھیک ہو گیا جی جی. اچھا جی. ڈاکٹر ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اچھا چلیں ابھی جو ہے نا ذرا 5-10 منٹ ذرا ابھی آپ لوگ کلاس میں رہیں، میں ذرا ایک جگہ قبلے کے لیے وہ آیا ہوں، تو میں ادھر دیکھ کے پھر میں ابھی وہ کلاس پھر شروع کرتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے، 5-10 منٹ بعد جو ہے ابھی کلاس ابھی وہ رہے گی. آپ لوگ لیو نہیں کرنا، گروپ جو ہے ریکارڈنگ اسٹاپ. جناب بس معذرت میں اصل میں ہوتا ہی ہے نا کہ وہ مجھے قبلوں کے لیے بھی جانا پڑتا ہے ہر جگہ کے اوپر، لاہور وغیرہ قصور سائڈ پہ. تو میں آج ابھی یہ موٹر وے سائڈ پہ پہلے ایک مسجد کا وہ رکھا ہے قبلہ، تو ادھر بھی دوسری مسجد کا بھی رکھا ہوا تھا پہلے، اس کو دوبارہ صرف چیک کرنے کے لیے آئے تھے. وہ مسجد بن گئی ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ میں پھر بس یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو الحمدللہ سینکڑوں کے اندر مساجد جو ہیں وہ میں قبلے کی جو ہے ان کی وہ کر چکا ہوں. تو یہ جو ہے نا اس وجہ سے ذرا یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس میں سے آ جائے گا. اچھا جی، تو اس وجہ سے جو تھا نا جناب ٹھیک ہے، مجھے وہ دے دیں آپ.
تو کام جو ٹھیک ہے جی، ایا کا جو ہے، ایا کا کیا ہے، اسم ہے اور اس میں غیر متمکن ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں غیر متمکن ہے، اور اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، اس میں سے تھا مضمرات، پہلی قسم تھی۔ پھر مضمرات کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ ضمائر ہمارے پاس آتی ہیں، تو ان ضمائر میں سے یہ چیز آتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس پہ اب کسی نے گھبرانا نہیں ہے کہ آپ یہ کہو کہ جی استاد جی تو بڑا مشکل لگ رہا ہے، نہیں یہ مشکل نہیں ہے، یہ بڑا آسان ایک چیزیں چلیں گی، آپ اس کو سسٹمیٹیکلی ہم لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سسٹمیٹیکلی چلیں گے، تو اس لیے آپ کو کوئی وہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی آپ نے بس یہ چیزیں یاد کرنی ہے، اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن، اور یہ جو تھا نا یہ اس میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو یہ تو بات ہوگی جناب، اس میں سے ہمارے پاس سامنے آ رہا تھا کہ یہ آ گیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا جی، اب آگے ہم دیکھتے ہیں، اور ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم اور کون ہیں، احمد محمود صاحب، احمد محمود صاحب، چلیے جی، احمد محمود صاحب جناب، آواز آ رہی ہے آپ کو احمد محمود صاحب؟ جی اچھا، نعبدو، نعبدو اس میں فعل ہے، حرف ہے، سر جی فیل ہے، فعل کیوں ہے، فعل کیوں ہے؟ فیل مضارع، نہیں یہ تو کوئی علامت نہیں تھی 9 علامتوں میں سے، 9 علامتوں میں سے تو کوئی علامت نہیں تھی فعل مضارع، اس پہ زمانہ پایا جا رہا زمانہ بھی کوئی علامت نہیں تھی فعل کی، مجھے تو فعل کی 9 علامتوں میں سے کوئی بتائیے، مجھے تو فعل کی 9 علامتوں میں سے بتائیے، اس کے اندر سے عرف عطین داخل ہوا، وہ بھی کوئی علامت نہیں تھی، میں نے تو نہیں پڑھائی آپ کو، بعض لوگ پڑھاتے ہیں اور عرف عطین داخل ہوں، میں نے تو نہیں پڑھائی، میں نے تو 9 علامتیں بتائی تھیں آپ کو، بھائی اس میں ضمیر مرفوع متصل ہے، نحن ضمیر، نعبدو کے اندر نحن ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل ہے، اس کے اندر بات سمجھ میں آئی ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے اس مفہوم متصل، کے اندر، تو اس لیے یہ کیا آ گیا، نعبدو۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کے خیال میں یہ شش اقسام میں سے کیا چیز واقع ہو رہا ہے، شش اقسام میں سے، شش اقسام پڑھی ہوئی ہے نا، انہوں نے پڑھائی تھی شش اقسام، یہ ثلاثی مجرد شش ہے، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مجرد ہے جی، کیوں ثلاثی مجرد کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، کیوں نون نظر نہیں آ رہا آپ کو سامنے، نعبدو کے اندر نون نظر نہیں آ رہا، آبادہ مادہ اس کا، تو نون زائد نہیں آ رہا اس کے اندر، یہ مضارع کی علامت ہے، تو یہ تو کوئی وہ بات نہ ہوئی، مضارع کی علامت تو ہے، لیکن یہ تو نون تو آ رہا ہے، زائد تو آ گیا، اس کی جو بنا ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے ابھی، یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے بھائی، کیا ادھر کیا بولنا ہے کہ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے اندر، ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے اندر 3 حرف ہیں اور تینوں کے تینوں اصلی ہیں، آبادہ، بات سمجھ میں آئی ہے؟ جواب کیا ہے کہ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے اندر
तीन हर्फ हैं और तीनों के तीनों क्या हैं, असली हैं, इसलिए क्या होगा ये जो है ये क्या बनेगा, माजी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब के अंदर तीन हर्फ हैं, तीनों असली हैं, इसलिए सुलासी मुजर्रद है। ठीक हो गया, या का ना बुदू में से आ गया। अच्छा, अब ना बुदू का आपके ख्याल में वजन क्या बनेगा, ना बुदू का वजन क्या बनेगा, ना बुदू ना बुदू का वजन क्या बनेगा, ना फोलू हो गया। इसका हरूफ असलिया क्या निकलेंगे, आइन बा दाल, आइन बा और दाल निकलेंगे हरूफ असलिया इसके, आइन बा और दाल निकल आएंगे हरूफ असलिया इसके, हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया कि इसका मतलब यह है कि या का नाबुदू उसमें से जो है ना, तो ये फ़ाला या फुलू से ये सुलासी मुजरद के अंदर से फ़ाला या फुलू वाला जो है नसरा यंसुरु वाला वो बनेगा, अबदा या अबुदू। ठीक हो गया जी, ये भी हो गया जनाब। ठीक है जी, अच्छा जी, और कौन से हैं, बस ये इतने साथी जो हैं बस उसमें से मौजूद थे। चलें जी जनाब, हम जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं उसमें से और देखते हैं कि जी इसमें से अब जो था कल हमने जो पढ़ा था उसमें से 16 किस्मों में से अगर कोई शेयर कर सकें स्क्रीन, तो स्क्रीन शेयर कर दें, जरा स्क्रीन शेयर कर लें अगर स्क्रीन जो है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया उसमें से। अच्छा, हमने अभी तक क्या पढ़ी है, अभी तक जो खुलासा किया है मैं आपके सामने आपको दोबारा रखता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा क्या है अभी तक। देखें जनाब, हमने क्या किया, तो हमने ये किया कि हमने कहा कि जब भी आपके पास कोई भी लफ्ज आ जाए अरबी के अंदर, तो पहला काम ये होता है कि आपने से अक़साम को पहचानना होता है, इसम फेल और हर्फ को पहचानना है। और उसको पहचानने का तरीका क्या होता है कि इसम की अपनी अलामात होती हैं, फेल की अपनी अलामात होती हैं, उनके ज़रिए से आप पहचानते हो कि ये इसम वाक़या होगा या ये फेल वाक़या होगा। अगर कोई अलामत नहीं होगी तो फिर वो हर्फ वाक़या होगा। ठीक है, अगर हम दूसरा काम ये होता है कि जब अगर आपने पहचान लिया, अगर इसम होगा तो इसम की 11 अलामतों में से कोई एक अलामत आ जाती है, फेल होगा तो फेल की 9 अलामतों में से कोई ना कोई अलामत जो है उसमें मौजूद होती है, हम पहचान जाते हैं। अगर इसम आ जाएगा जनाब, तो अब आपने क्या काम करना है इसम के अंदर, ठीक है ना। स्क्रीन ना भी शेयर हो, खैर मैं जुबानी अभी वो कर रहा हूँ आपको, जो है स्क्रीन की शेयर की कोई वो नहीं है, ये तो मैं जुबानी अभी आपको वो चीजें जो बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है उसमें से लिखते जाएं आप अपने पास। दूसरा काम ये था कि हमने ये पहचानना था कि वो इसमें गैर मुतमक्किन है या इसमें मुतमक्किन है। वो कैसे पता चलता है कि इसमें गैर मुतमक्किन की 8 अक़साम को देखना होता है। अगर ठीक है ना, तो अगर 8 अक़साम में से, एक मिनट में ओपन सेटिंग्स, मीटिंग सेटिंग्स के अंदर से मैं स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन वो दे रहा हूं मैं। एक मिनट, ठीक है जी, अच्छा जी। तो दूसरा काम क्या था आपका, दूसरा काम ये था आपका कि आप ने इसम फेल और हर्फ इसमें गैर मुतमक्किन है या इसमें मुतमक्किन है, आपने ये काम करना था। ठीक है जी, इसमें गैर मुतमक्किन है या इसमें अगर इसमें गैर मुतमक्किन की 8 अक़साम में से अगर वो 8 अक़साम में से नहीं होगा तो इसमें मुतमक्किन होगा। अगर इसमें मुतमक्किन होगा तो फिर हमें इसमें मुतमक्किन की 16 अक़साम को पहचानना होगा। हमें इसमें मुतमक्किन की 16 अक़साम को हमें पहचानना होगा कि उन 16 अक़साम में से वो क्या वाक़या हो रहा है। ठीक हो, हमने पढ़ ली कि इसमें मुतमक्किन की 16 अक़साम में से हमने
पहला पढ़ा मुफरद मुनसरिफ सही, वो आपको बता दिया था। दूसरा हमने पढ़ा था मुफरद कायम मकाम, बता रहा हूँ मकाम सही, उसके आखिर में हरफ इल्लत हो और उसका माकबल साकिन हो, उसको कहते हैं कायम मकाम सही। जैसा कि दलवुन था या ज़बियुन था कि आखिर में हरफ इल्लत आ जाए और माकबल क्या आ जाए, साकिन आ जाए। तीसरा हमने पढ़ा था जमा मुकस्सर मुनसरिफ, जमा मुकस्सर मुनसरिफ, जैसा कि रिजालुन। ठीक हो गया? वॉइस लिखिए, वॉइस ओके? जी अच्छा जी। तीसरा आ गया जमा मुकस्सर मुनसरिफ, जमा मुकस्सर मुनसरिफ आ गया। वो क्या था? जमा मुकस्सर इसमें वाहिद की बिना टूट जाती है, ये हो गया था। चौथा हमने कल पढ़ा था कि जमा मोनस सालिम जो होता है, जमा मोनस सालिम के क्या होता है कि आखिर में अलिफ और ता आ रहे होते हैं, और जमा मोनस सालिम अलिफ ता के आने की वजह से उसको हम क्या कहते हैं कि जी मुस्लिमात, जैसा कि आ गया था। हालत रफा में जमा होता है और हालत नसब और जर में कसरा के साथ आता है, इसलिए जब वहां पे कसरा के साथ मुस्लिमातिन का लफ्ज अगर आ रहा हो तो आपने फौरन ये नहीं कहना कि ये मजरूरात में से कुछ बन रहा है। इसको बात को गौर से सुने। अगर मुस्लिमातिन वगैरह या इस तरह कोई भी कानितातिन, हाफिजातिन, इस तरह कोई अल्फाज आ जाएंगे जिसके आखिर में अलिफ और ता आ रहा है और जो है उस पर कसरा आ रहा हो, तो आपने फौरन ये नहीं कह देना कि ये हालत जरी है। हो सकता है कि वो हालत नस्बी हो सकता है कि वो हालत नस्बी हो, उसको हमें पीछे देखना पड़ेगा कि ये तरकीब में क्या वाकया हो रहा है। बात समझ में आई है कि ये, इसलिए इसको ख्याल करना है जरा, कि खाली देखते ही फौरन आप वो ना कर दें कि जी हाफिजातिन कानितातिन वगैरह इस तरह के कोई अल्फाज अगर आ जाएं तो हालत जरी नहीं वो बना देना, उसको देखना पड़ेगा कि पीछे क्या तरकीब में क्या वाकया हो रहा है। अच्छा, इससे आगे चलें जनाब, इससे आगे आता है जनाब आपके पास हाँ, फिर अब आते हैं जनाब हमारे पास आ गया गैर मुनसरिफ आ गया। नंबर 5 क्या आ गया? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ की तारीफ हमने पढ़ी थी जनाब कि गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं कि जिस पर कसरा और तनवीन नहीं आता, गैर मुनसरिफ। ये तो था क्या उसकी एक वो है, तनवीन नहीं आता। इसकी तारीफ क्या की जाती है? तारीफ अपने पास लिखें कि गैर मुनसरिफ क्या होता है, जिसमें असबाबे मना सर्फ में से कोई दो सबब आ जाएं, असबाबे मना सर्फ में से कोई दो सबब आ जाएं या एक ऐसा सबब आ जाए जो दो के कायम मकाम हो। ठीक है ना? असबाबे मना सर्फ में से दो सबब आ जाएं किसी लफ्ज के अंदर, या एक ऐसा सबब आ जाए जो दो के कायम मकाम होता है, तो वो लफ्ज क्या बन जाया करता है? गैर मुनसरिफ बन जाया करता है। जब वो गैर मुनसरिफ बन जाएगा तो उस पे कसरा और तनवीन आम हालात में नहीं आते, कसरा और तनवीन नहीं आते, इसलिए इसका नाम है उसमें से गैर मुनसरिफ जो है इसको कहा जाता है। और असबाब मना सर्फ क्या थे? हमने उस दिन भी पढ़े थे असबाब मना सर्फ में से कि वो हमारे पास कितने आते हैं? वो 9 आते हैं असबाब मना सर्फ। अदलों व वस्सों व तानीसों व मारिफतों व उजमन मजम तरकीब कलो वज़्न फ़ेलिन व हाज़िल क़ौल तक़रीब। ये शेर है, उसके अंदर इल्म नहव में लिखा हुआ है, वो अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अदल, वसफ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़्न फ़ेल, अलिफ व नून ज़ायदतान। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये 9, उसमें 9 सबब होते हैं, और उसमें से हमने उस दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा था कि अदल किसे कहते हैं, वसफ किसे कहते हैं। अगर आपको ये ना भी वो पता चले ना कि अगर गैर मुनसरिफ पढ़ना है या मुनसरिफ पढ़ना है, तो इस पे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम पहले वो चीज़ें कर लें जो हम आम तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। गैर मुनसरिफ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें हमें पता चल जाता है ज़्यादातर मोनस के जो नाम वगैरह जो आते हैं, ख्वातीन के जो नाम होते हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं, तो वो हमें वैसे ही पता चल जाता है कि जी ये क्या है, गैर मुनसरिफ है। अगर हमें ज़्यादा डिटेल ना भी पता चले तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें से। ठीक है, तो ये गैर मुनसरिफ का क्या होगा? हालत रफ़ा में ज़म्मा आएगा, हालत रफ़ा में ज़म्मा आएगा, और हालत नसब और जर दोनों में फ़तह आएगा। हालत नसब और जर दोनों में क्या आएगा? फतह आएगा। उसकी मिसाल क्या आएगी? जाअनी उमर
राई तो उमरा मरर तो भी उमरा, अगरचे मरर तो भी उमरा में देखें कि बा दाखिल है, बा दाखिल है उसके अंदर, मरर तो भी उमरा में क्या है, बा दाखिल है हरफे जर उसमें से, लेकिन क्या है उसमें से फिर भी हम क्या कर रहे हैं उसमें से, मरर तो भी उमरा के अंदर बा दाखिल होने के बावजूद भी हालते जरी में हम उसको फतह के साथ ही पढ़ रहे हैं, फतह के साथ ही पढ़ रहे हैं उसमें से, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, ये हाल हम हालते जरी के अंदर, तो गैर मुनसरिफ में क्या होता है, हालते जरी में भी फतह ही आता है, हालते जरी के अंदर भी फतह, क्योंकि जरी बात हमने कहा था ना, इसमें कसरा नहीं आएगा, गैर मुनसरिफ पे कसरा नहीं आएगा। जब कसरा नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे उसको, हम इसको हालते जरी के अंदर भी रफा के साथ ही पढ़ेंगे, तो ये इसमें से आ गया गैर मुनसरिफ आ गया। ठीक हो गया जी। बस आज हम इसको इतना ही रख लेते हैं, तो आज हम इसको इतना ही रख लेते हैं। कल फिर इंशाल्लाह, क्योंकि मैं फिर जामिया के अंदर ही हूँ कल भी, अभी भी बस मैं वापस ही हो रहा हूँ, मोटरवे पे ही हूँ, तो मैं इंशाल्लाह फिर कल इंशाल्लाह जो है ना, तो ये इंशाल्लाह जो है ना हम इसको वो कर देंगे, ठीक है जी। तो कल इंशाल्लाह फिर हम आगे भी पढ़ेंगे और मैं कुछ चीज़ें मेरा इसको करूँगा, इसलिए मैंने कहा कि आज थोड़ा सा इजराम कर लें, तो उसमें से फिर ख्वातीन का हम इंशाल्लाह इजरा की इलादा तरतीब बनाएंगे, ख्वातीन की इजरा की तरतीब इलादा होगी, मर्दों की तरतीब इलादा होगी, इजरा की जो है इनकी तरतीबें दोनों की इलादा हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं खुद